Hello students, I am Kumar going to discuss part 2 of chapter 14 Semiconductor Electronics of class 12. In this video, I am going to discuss the topic types of semiconductors, that is two types of semiconductors, intrinsic and extrinsic semiconductors. अर्धचालक के दो टाइप्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर निज अर्धचालक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाह्य अर्धचालक. Semiconductors can be divided into two categories. अर्धचालक को दो भागों में बांटा जा सकता है. नंबर 1 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, हिंदी में निज अर्धचालक, एंड सेकेंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, हिंदी में बाह्य अर्धचालक. नाउ राइट डाउन टाइप्स ऑफ semiconductors. Two types of semiconductors. Two types of semiconductors are number 1 intrinsic semiconductor. It is also called pure semiconductor. It is pure semiconductor, शुद्ध अर्धचालक है. इसमें बाहरी एटम्स, एक्सटर्नल एटम्स इम्प्योरिटी के फॉर्म में नहीं मिक्स किए जाते हैं. सो intrinsic semiconductors, intrinsic semiconductor and intrinsic semiconductor is a pure semiconductor. First is intrinsic semiconductor. हिंदी में इसे निज अर्धचालक कहा जाता है. निज. नंबर 1 इज intrinsic semiconductor and number 2 is extrinsic, but we will discuss later on after discussing intrinsic semiconductor. पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर निज अर्धचालक को डिस्कस कर लें, उसके बाद इसका सेकेंड टाइप सेमीकंडक्टर्स का एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर्स, जिसे बाह्य अर्धचालक कहा जाता है, और उसका भी दो टाइप होगा. उसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, उन दोनों को डिस्कस करेंगे. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स and an intrinsic semiconductor is intrinsic semiconductors are pure semiconductors. Okay. Intrinsic semiconductors and intrinsic semiconductor is a pure semiconductor. Is a pure semiconductor in which conductivity depends on the charge carriers present inside the conductor, inside the material, that is semiconductor. But at low temperature or 0 Kelvin temperature, 0 K temperature, intrinsic semiconductor behaves as an insulator, because there are no free electrons. There are no free electron inside an intrinsic semiconductor at low temperature. At 0 K, it completely behaves, that is intrinsic semiconductors completely behave. Intrinsic semiconductors completely behave as an insulator or insulators. So an intrinsic semiconductor is a pure semiconductor because no impurity atoms are added in an intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor निज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, क्योंकि बाहर से कोई अशुद्धि एटम्स, इम्प्योरिटी एटम्स, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मिक्स नहीं किए जाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में. तो एट लो टेम्परेचर देर आर no free electrons. At 0 Kelvin there are no free electrons inside an intrinsic semiconductor.
सो इट बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। और बैंड डायग्राम को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट T = 0 केल्विन, टेम्परेचर 0 केल्विन, उसको रिप्रेजेंट किया गया है। मैंने रिप्रेजेंट किया है फिगर 1A में। ये वैलेंस बैंड है, नीचे का जो बैंड है एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड, इसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट किया गया है वैलेंस एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड EV से। और बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप है, और सबसे ऊपर का कंडक्शन बैंड है जो एनर्जी बैंड सेमीकंडक्टर का कंडक्शन बैंड है। इट इज completely empty. It can be seen that the conduction band is completely empty, and there is a forbidden gap, energy gap Eg, which is nearly, in this case, at 0 Kelvin. This gap is almost equal to the gap, energy gap between valence band and conduction band of an insulator. 0 केल्विन टेम्परेचर पर, जो कि वेरी लो टेम्परेचर हो गया, 0 K टेम्परेचर, -273 डिग्री C टेम्परेचर इज वेरी लो, इज कॉल्ड 0 K टेम्परेचर। तो एट 0 K टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर निज अर्धचालक का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप, जो कि फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है, तो जिसको हिंदी में वर्जित क्षेत्र कहा जाता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप हिंदी में वर्जित क्षेत्र, अंग्रेजी में फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये लार्ज होता है, ये उतना ही लार्ज है, माने ये लार्ज है, उतना ही लार्ज है जितना कि एक इंसुलेटर में होता है। तो सो एट 0 K टेम्परेचर, एट T = 0 K, एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन insulator, which is represented in figure 1A. And we can see here that conduction band is totally empty. No electrons from valence band are able to cross the forbidden energy gap to reach the conduction band, because forbidden energy gap is very large. In case of insulators, forbidden energy gap is greater than 3 electron volt. In case of diamond, it is 6 electron volt. So this energy gap is very large, and there are no free electrons inside the intrinsic semiconductor material at low temperature. But as temperature rises, some covalent bonds inside of an intrinsic semiconductor are broken, and some free electrons are liberated due to thermal agitation, that is thermal excitation, तापीय विक्षोभ के कारण। कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड्स के टूटने के कारण, ब्रेक होने के कारण इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में उत्पन्न होते हैं जब टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज, व्हेन टेम्परेचर ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज स्लाइटली इंक्रीज। जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर निज अर्धचालक के टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाया जाता है, तो उसके कुछ कोवैलेंट बॉन्ड्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कुछ कोवैलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन, ब्रेक कर जाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स और टूट जाते हैं, और उनसे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होते हैं, जो कि तापीय विक्षोभ के कारण, थर्मल एजिटेशन के कारण होता है, और थोड़ी कंडक्टिविटी उत्पन्न हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन्स सेमीकंडक्टर्स में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में शिफ्ट करते हैं। एंड वैकेंसी क्रिएटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड a semiconductor is called holes. The vacancy created by an electron in shifting from one position to another position inside the intrinsic semiconductor, inside the semiconductor, create vacancy at that place, and that vacancy is called holes. That vacancies are inside a semiconductor are called holes. थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने पर जैसा कि मैंने बतलाया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कुछ बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड्स, सहसंयोजक बॉन्ड बंधन जिसे हिंदी में कहा जाता है, ब्रेक करते हैं, आर ब्रोकन, टूट जाते हैं, और उनसे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तापीय विक्षोभ के कारण, थर्मल एजिटेशन के कारण उत्पन्न होते हैं, और थोड़ी कंडक्टिविटी उत्पन्न होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने पोजीशन को शिफ्ट करते हैं, और जो वैकेंसी उन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होती है
उसको होल्स कहा जाता है। होल्स हिंदी में छिद्र कहा जाता है। और चूँकि इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा क्रिएट की गई वैकेंसीज हैं सेमीकंडक्टर के अंदर में, इंटेंजिबल सेमीकंडक्टर के अंदर में, तो उस वैकेंसीज को होल्स कहा जाता है, छिद्र कहा जाता है। छिद्र या वीवर हिंदी में, छिद्र या वीवर हिंदी में कहा जाता है। और चूँकि वैकेंसी इलेक्ट्रॉन वहाँ पर उस पोजीशन पर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ उस पोजीशन से माइग्रेट कर जाता है जहाँ होल्स प्रोड्यूस होता है, तो वह पोजीशन निश्चित रूप से, चूँकि वहाँ इलेक्ट्रॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, तो वह पोजीशन यहाँ के इलेक्ट्रॉन जहाँ वैकेंसी क्रिएट होती है इलेक्ट्रॉन की, जिसे होल्स कहा जाता है, तो वह पॉजिटिव चार्ज की जैसा बिहेव करता है। सो कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है 1 मार्क्स में, डिफरेंट बोर्ड्स 12 बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में, व्हाट इज होल, CBSE बोर्ड में या स्टेट बोर्ड्स में। तो ए होल इज वैकेंसी क्रिएटेड बाई एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए सेमीकंडक्टर विच बिहेव्स एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर। तो ये होल्स हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद, टूटने के बाद कुछ प्रोड्यूस होते हैं, तो थोड़ी कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी उत्पन्न हो जाती है स्लाइटली। और कुछ इलेक्ट्रॉन अब फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस करके, क्योंकि थर्मल एजिटेशन के कारण, तापीय विक्षोभ के कारण, कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, और इसके कारण वैकेंसी क्रिएट होती है वैलेंस बैंड में। जो वैलेंस नीचे बैंड, ये जो बैंड है वैलेंस बैंड है, यहाँ मैंने इसको रिप्रेजेंट भी किया है, लिखा भी है, और ऊपर कंडक्शन बैंड है। यह तो टोटली खाली है। शुरू के सिचुएशन में जब टेम्परेचर T = 0 केल्विन है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्शन बैंड टोटली खाली है, और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा है। एट 0 के टेम्परेचर पर एनर्जी गैप लगभग इंसुलेटर का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है उतने के इक्वल है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से स्मॉलर होता है। ऐसे अगर थोड़ा सा स्लाइट टेम्परेचर अगर थोड़ा ज़्यादा हो तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि कंडक्शन वैलेंस बैंड का यहाँ जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया गया है, पहुँच गया है कंडक्शन बैंड में। इस प्रकार 4 इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर्स आर फॉर्म्ड इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीजेज ग्रेटर देन 0 के। तो यहीं पर देखिए वैकेंसी जो क्रिएट किया गया है कंडक्शन बैंड में, यहाँ वैलेंस बैंड में, सॉरी, इस वैकेंसी को इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, एनर्जी गैप को पार करके, क्रॉस करके, फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में पहुँच गया, और इस प्रकार 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचा। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ उतना ही होल्स, जितना इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा उतना ही होल्स प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर सॉलिड, जो यहाँ पर चाहे इस फिगर में भी जो सॉलिड सर्किल है, सॉलिड सर्किल, वह रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, और जो हॉलो सर्किल है, हॉलो सर्किल इसमें तो नहीं है T = 0 केल्विन पर वैलेंस बैंड में, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच नहीं पाया कंडक्शन बैंड में, लेकिन यहाँ पर है 4 इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू रीच इन द कंडक्शन बैंड फ्रॉम द वैलेंस बैंड बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीजेस स्लाइटली above 0 K. So at temperature T = 0 K, some conductivity is produced in an intrinsic semiconductor. और यहाँ पर जो सॉलिड सर्किल है वह इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हॉलो सर्किल्स है वह रिप्रेजेंट कर रहा है होल्स को। ये होल है, ये यहाँ ये होल है, ये सब जो हॉलो सर्किल है ये होल है। होल इज द वैकेंसी क्रिएटेड बाई एन इलेक्ट्रॉन। होल है क्या? वैकेंसी क्रिएटेड बाई एन इलेक्ट्रॉन। एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये प्योर सेमीकंडक्टर, और इसमें कंडक्टिविटी अपने ही अंदर के मटेरियल के द्वारा, अपने अंदर ही अपने ही मटेरियल में प्रेजेंट चार्ज कैरियर्स के द्वारा होती है। बाहर से कोई एटम्स इसमें नहीं मिक्स किया जाता है। बट एट 0 के टेम्परेचर intrinsic semiconductor, and intrinsic semiconductor behaves as an insulator, which is shown in figure 1a. There are no free electrons
in conduction band. Conduction band is totally empty, but at 0 K temperature, and intrinsic semiconductor behaves as an insulator at temperature T is equal to 0 K, behaves as an insulator. But if temperature is slightly increases, that is temperature above 0 K, but if temperature is slightly increases, that is T is greater than 0, temperature is slightly increases, T is greater than 0 K, some electron holes are electron holes pairs are produced due to because some covalent bonds are broken. Here 4 electrons hole pairs are represented in figure 1b. Some electron hole pairs are produced due to thermal agitation, तापीय विक्षोभ के कारण, थर्मल एक्साइटमेंट के कारण, क्योंकि टेम्परेचर को स्लाइटली इंक्रीज किया गया है. सम इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर generated due to thermal agitation, and so conductivity of an intrinsic semiconductor slightly increases. Thermal agitations and its conductivity slightly increases. Now we can define holes or hole. Hole is the vacancy holes are the vacancies created by electrons in a semiconductor, intrinsic semiconductor. Holes are the vacancies created by by electrons in an intrinsic semiconductors as well as in extrinsic semiconductor. So holes are the vacancies created by electrons in a semiconductor, which behaves, a hole behaves as a positive charge carrier in a semiconductor. So vacancy created by electrons in a semiconductor are called holes, which behave as positive charge carriers. Holes are the vacancies created by electrons in a semiconductor which behave as positive charge carriers because electron deficients. Holes are electron deficients. Electrons वहाँ नहीं हैं, तो नेगेटिव चार्ज वहाँ पर है नहीं. So holes behave as positive charge carriers. Positive charge carriers. इसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में. डिफाइन व्हाट आर होल्स. So write down holes are the vacancies created by electrons in a semiconductor which behave as positive charge carriers. Now second kind of semiconductors are extrinsic semiconductors. बाह्य अर्धचालक.
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स फॉर्म होगा जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में एक्सटर्नल एटम्स एक्सटर्नल एलिमेंट का एटम्स इम्प्योरिटी के रूप में स्मॉल क्वांटिटी में मिक्स किया जाएगा और इस प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक्सटर्नल एटम्स को मिक्स करना, इस प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड डोपिंग। इसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी 12 बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में। व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग इज द प्रोसेस इन विच एक्सटर्नल एटम्स और एक्सटर्नल एलिमेंट्स some part या some atoms of an external elements are mixed to an intrinsic semiconductor. This process is called doping, and it is done to increase the conductivity of intrinsic semiconductor. डोपिंग इसलिए किया जाता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी लो टेम्परेचर पर निग्लिजिबल होती है, तो उसकी कंडक्टिविटी को, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल एलिमेंट्स के कुछ एटम्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में मिलाए जाते हैं और इस प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। और ऐसा करने से कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसमें या तो चार्ज कैरियर्स, तब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स या तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं या होल्स हो जाते हैं, और इन दोनों चार्ज कैरियर्स के कारण कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर्स आर द सेमीकंडक्टर्स इन विच कंडक्टिविटी is influenced by mixing external atoms from outside. तो कंडक्टिविटी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक्सटर्नल एटम्स पर डिपेंड करती है, और एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन प्रकार के अर्धचालक, एंड नंबर 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर नॉट प्योर सेमीकंडक्टर कंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर प्योर सेमीकंडक्टर, बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इसमें चूँकि बाहर से एटम्स मिक्स किए जाते हैं तो इसलिए डॉप किए जाते हैं। सो जो एटम्स डॉप किए जाते हैं उसको डोपेंट कहा जाता है। तो टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर नॉट प्योर सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स are formed due to mixing of external atoms as impurity or external elements, some atoms of external elements as impurity by due to mixing external atoms, उसे डोपेंट्स कहा जाता है। एक्सटर्नल एटम्स डोपेंट्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रॉपिंग, that is mixing external atoms in a small amount, the external elements in a small amount, or external atoms to an intrinsic semiconductor. This process is called doping. इस प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है जब बाहरी एलिमेंट के स्मॉल क्वांटिटी को किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर निज अर्धचालक में मिलाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है, और जो एटम्स मिक्स किए जाएंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में उसको डोपेंट्स कहा जाता है। एटम्स डोपेंट्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म ड्यू टू मिक्सिंग एक्सटर्नल एटम्स डोपेंट्स टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जिससे कि इसकी कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से काफ़ी अधिक हो जाती है।
क्योंकि डोपेंट्स मिलाए जाते हैं एटम्स, तो नंबर ऑफ फ्री ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स इंक्रीज कर जाते हैं, जिसके कारण एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स, and doping is mixing of external atoms to an intrinsic, the process of mixing of external atom to an intrinsic semiconductor is called doping. ये पूछा जाता है 1 मार्क्स में, तो यू कैन राइट डाउन इट। डोपिंग, द प्रोसेस ऑफ mixing external atoms as impurity, external atoms as impurity to intrinsic semiconductors atoms, the process of mixing external atoms to an intrinsic semiconductor to increase its conductivity। क्यों किया जाता है डोपिंग? कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जिससे कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन्हांस कर जाता है, बढ़ जाता है। या तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होल्स होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स होगा। डिपेंड करेगा कि किस टाइप का सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है या पी टाइप सेमीकंडक्टर है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एक्सटर्नल एटम्स टू एन intrinsic semiconductor to increase its conductivity, is called doping, and the atoms so added in this process are called dopant. And process is doping. By mixing, the process of mixing external atoms to the intrinsic semiconductor, to an intrinsic semiconductor, निज अर्धचालक में, to increase its conductivity is called doping. And atoms so added to the intrinsic semiconductor to an intrinsic semiconductor are called dopants. And thus this process is called doping. And atoms so added are called dopants. Now extrinsic semiconductor can be divided into two categories. There are two class of extrinsic semiconductors. So types of intrinsic semiconductors, types of extrinsic semiconductors, types of extrinsic semiconductors, two types of extrinsic semiconductors are: number one, n type semiconductor, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, निगेटिव चार्ज कैरियर्स ज़्यादा होगा, इसलिए इसका नाम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स है। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। एंड नंबर टू, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब दोनों कंडक्टर्स को डिस्कस करते हैं। Now n-type semiconductor, which is one of the type of extrinsic semiconductor. N-type semiconductor is formed when intrinsic semiconductor, germanium or silicon. Commonly used intrinsic semiconductors are germanium, silicon. Besides selenium also, but commonly used intrinsic semiconductors are germanium or silicon. If trivalent atoms
or trivalent elements in a small amount, if pentavalent elements in a small amount, or pentavalent atoms such as phosphorus, arsenic, antimony, etc. are doped or added to pure germanium or silicon, that is intrinsic semiconductor, then n-type semiconductor is formed, because 4 valence electrons of pentavalent atoms are combined to 4 valence electrons of germanium and silicon to form 4 covalent bonds, and 1 electron is free in the crystal to move randomly. So there are excess of electrons in n-type semiconductors, and the atoms added to pentavalent atoms added to germanium or silicon, that is intrinsic semiconductors, are called donors. So there are majority charge carriers, excess of electrons in n-type semiconductors. So in n-type semiconductors, majority charge carriers are electrons, while minority charge carriers are holes. n-type semiconductor कैसे फॉर्म होता है? जब प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन में, जो कि निज अर्धचालक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें एक्सटर्नल एटम्स और एक्सटर्नल एलिमेंट, बाहरी तत्व की अल्प मात्रा, जैसे पंचसंयोजी तत्व होना चाहिए, पेंटावैलेंट एलिमेंट होना चाहिए, उसका एटम्स होगा, जैसे कि फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, etc. तो उसके एटम्स को पंचसंयोजी तत्व, पेंटावैलेंट एलिमेंट्स के एटम्स को डॉप किया जाएगा, मिलाया जाएगा इम्प्योरिटी के रूप में, जब जर्मेनियम और सिलिकॉन में, प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन में। तो इस प्रकार से एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप अर्धचालक का फॉर्मेशन होता है, का निर्माण होता है, क्योंकि पंचसंयोजी तत्व या पेंटावैलेंट एटम्स एलिमेंट के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कंडक्टर के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के 4 कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन का निर्माण कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में 1 इलेक्ट्रॉन अधिक रह जाता है, एक्सेस रह जाता है। तो इस प्रकार से वह इलेक्ट्रॉन उस क्रिस्टल में रैंडमली एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव कर सकता है, और जो एटम्स, बाहरी एटम्स मिलाए जाते हैं, उसको डोनर्स कहा जाता है, क्योंकि ये डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के एटम्स दूसरे एटम को, नियर बाई एटम्स को, नेबर्स को, अपने पड़ोसी एटम्स को, अगर इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। सो पेंटावैलेंट डोपेंट्स आर कॉल्ड डोनर्स। तो इस प्रकार एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हो जाएगा। जो वैकेंसी क्रिएट किया गया इलेक्ट्रॉन्स द्वारा, उसकी संख्या कम होती है एन टाइप कंडक्टर्स में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, एक्सेस होता है, तो इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। और इनर्जी बैंड्स को रिप्रेजेंट किया गया है एन टाइप सेमीकंडक्टर एट टी इज ग्रेटर देन 0 केल्विन। इनर्जी बैंड्स ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर एट टी इज ग्रेटर देन 0 केल्विन इज शोन इन फिगर 2a, जिसमें कि देखिए इसमें वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, काफ़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। और इसका जो डोनर लेवल है, क्योंकि पेंटावैलेंट एटम्स को डोनर कहा जाता है, एटम्स कहा जाता है, तो डोनर लेवल एकदम कंडक्शन बैंड के नीचे, वैलेंस बैंड से दूर, कंडक्शन बैंड के एकदम नीचे रहता है, सटा हुआ कंडक्शन बैंड के बॉटम के पास। और इसका एनर्जी
0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है इस डोनर लेवल का, डोनर लेवल जिसकी एनर्जी को ईडी से रिप्रेजेंट किया गया है। और इसी एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड वाइल ईवी इज द एनर्जी ऑफ, वी कैन रिप्रेजेंट एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड एज ईवी। तो यहाँ देख रहा है कि इसमें होल्स की संख्या काफ़ी कम है। यहाँ केवल इस फिगर में, डायग्राम में एक होल को दिखाया गया है वैलेंस बैंड में, जबकि इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी संख्या में कंडक्शन बैंड में पहुँच गए हैं वैलेंस बैंड से ट्रांसफ़र होकर के। तो इस प्रकार कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में ये इलेक्ट्रॉन्स होगा, जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक वाहक, आवेशवाहक होल्स होंगे जिसकी संख्या कम है वैलेंस बैंड में। तो इस प्रकार एनर्जी बैंड्स ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर एट टी इज ग्रेटर देन 0 केल्विन रिप्रेजेंट किया गया है। और इसमें जर्मेनियम और जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसमें राइट डाउन इट, इफ पेंटावैलेंट डोपेंट्स और पेंटावैलेंट एटम्स, इसको डोनर एटम्स कहा जाएगा, पेंटावैलेंट एटम्स और डोनर्स आर एडेड टू प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन विच इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, निजी अर्धचालक है। देन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म, एन टाइप। और पेंटावैलेंट एटम्स में कौन हो गया, जैसे फास्फोरस हो गया, पी हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, दीज आर पेंटावैलेंट एटम्स are added to pure germanium or silicon, then n type semiconductor is formed। कैसे प्रोसेस फॉर्म होता है उस प्रोसेस को मैंने बतला दिया है। n type semiconductor is formed और n type semiconductors में majority charge carriers are electrons, while minority charge carriers, चूँकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, minority charge carriers are holes in n type semiconductor। holes are the vacancy created by electrons in a semiconductor crystal। तो ये हुआ एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें पेंटावैलेंट एटम्स को ऐड किया जाएगा, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, etc आर पेंटावैलेंट एलिमेंट्स। उनके एटम्स को स्मॉल अमाउंट में इनके मिक्स किया जाएगा एन टाइप ये प्योर जर्मेनियम सिलिकॉन में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जिससे कि उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, इसलिए कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स भी इन्हांस कर जाता है, बढ़ जाता है इसलिए। एंड नंबर 2 सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप नाम से ही स्पष्ट है, पी फॉर पॉजिटिव टाइप, दैट इज नंबर ऑफ होल्स, पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज़्यादा होता है इसमें, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। देयर आर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, if trivalent atoms such as boron, aluminum, indium, gallium, these are trivalent atoms जिनकी वैलेंसी 3 होती है, 3 इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3। इफ ट्राईवैलेंट एटम्स, इन्हें डोपेंट्स भी कहा जाएगा और या इन्हें एक्सेप्टर कहा जाएगा। दीज एटम्स आर कॉल्ड एक्सेप्टर एटम्स बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स from the neighboring atoms due to lack of electron in fourth bond। क्योंकि जर्मेनियम सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, जर्मेनियम सिलिकॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन संख्या 4 होगी और ट्राईवैलेंट एलिमेंट है तो इसमें 3 होगी, एटम्स है तो 3 होगी, तो 4 + 3 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड्स तो कंप्लीट हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, लेकिन फोर्थ बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इसलिए इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी और होल्स की अधिकता होगी। देयर आर एक्सेस ऑफ होल्स
and lack of electrons in p-type semiconductor. तो if trivalent atoms such as boron है, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम etc are added to germanium or silicon, that is pure semiconductor, pure semiconductor और intrinsic semiconductor. तो टोटल इसमें ट्राईवैलेंट में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जर्मेनियम सिलिकॉन में 4 है, तो 4 + 3 7 हुआ, तो मतलब 3 बॉन्ड तो कंप्लीट होगा, लेकिन 4th बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसलिए इसमें लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा ये पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होगा, होल्स की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होगी. इफ ट्राईवैलेंट एटम्स जैसे कि बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम etc are added to germanium or silicon, that is pure semiconductor, p-type semiconductor is formed, semiconductor is formed, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, होल्स की अधिकता होगी, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें होल्स होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होगा सेमीकंडक्टर्स. और जो एटम्स ट्राईवैलेंट एटम्स हैं उनको एक्सेप्टर कहा जाएगा, और यहाँ पर इसके एनर्जी बैंड डायग्राम को भी यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है इन फिगर 2b, एनर्जी बैंड्स ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर एट T > 0 केल्विन. तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एक्सेप्टर लेवल जो है ये वैलेंस बैंड के थोड़ा ऊपर है, वैलेंस बैंड के नज़दीक है और थोड़ा ऊपर, और इसकी एनर्जी एक्सेप्टर लेवल का, ये एक्सेप्टर लेवल को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर लेवल को कंडक्शन बैंड के थोड़ा नीचे, तो उसका एनर्जी 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका एक्सेप्टर लेवल पी टाइप सेमीकंडक्टर का, दिस इज पी टाइप से एनर्जी बैंड्स ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो इसका एक्सेप्टर लेवल का एनर्जी का रेंज, एनर्जी लेवल का, एक्सेप्टर लेवल का एनर्जी लेवल का एनर्जी का जो रेंज है वह 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो यहाँ देख सकते हैं कि कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड में होल्स की अधिकता है. दीज आर द डॉटेड, ये फुल सर्किल, फुल सर्किल मतलब फुल हॉलो सर्किल्स रिप्रेजेंट होल्स, वाइल डॉटेड ये फुल सर्किल्स ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है. फुल सर्किल्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, वाइल हॉलो सर्किल्स रिप्रेजेंट्स होल्स. ये होल है, जितना हॉलो सर्किल यहाँ रिप्रेजेंटेड है होल है, और ये इलेक्ट्रॉन है. देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कम है, कंडक्शन बैंड में काफ़ी कम इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन होल्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है. यहाँ होल्स की संख्या ये वैलेंस बैंड में काफ़ी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है. देखिए इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन कम है, लेकिन होल्स की संख्या ज़्यादा है. तो इफ ट्राईवैलेंट एटम्स फॉर एग्जांपल बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम etc आर एडेड टू जर्मेनियम और सिलिकॉन, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड, और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स holes, and minority charge carriers are electrons, and minority charge carriers in p-type semiconductor are electrons. तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में हुआ, और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होगा, और होल्स का मतलब वैकेंसी क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जिसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसलिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा. और ये टॉपिक भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या है, या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, और व्हाट आर एन टाइप्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स are very important to examination point of view, usually asked in different 12 boards examinations. तो इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है, पार्ट 2 चैप्टर 14 क्लास 12 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।